semester. Okay, am I audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने क्या किया था. फर्स्ट सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव डन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड. ठीक है. देन पहले तो उससे पहले हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया था. ऑलमोस्ट ऑल केमिस्ट्रीज आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है. ऐसे नहीं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हमको सिर्फ मेडिसिन के बारे में ही पढ़ना है. व्हाट वी हैव लर्न द बेसिक नॉलेज इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जो बेसिक नॉलेज हम लोगों ने सीखा था दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. सो बिकॉज दैट विल हेल्प अस to predict the reaction condition, to predict the steps of the reaction, to select the catalyst, to choose the catalyst. So it will help us in that, in all those kind of difficulty we are going to tackle with our organic chemistry knowledge while we are synthesizing the drug molecule. ठीक है. ये है अपना बेसिक जो हमने सीखा था. अब यहाँ पे हमको क्या करना है भाई. Here what we are doing, we are synthesizing the drugs. Drugs को हमको synthesize करना है. Suppose for example, you know that अगर तुमको कोई pain है, pressure है, temperature है, what you will do? You are going to purchase the anti-inflammatory or analgesics or antipyretic tablets. Antipyretics are the stage where the temperature is increased, the body temperature is increased. To reduce that body temperature, we are going to give the drug. तो ड्रग कहाँ से आया है. ऊपर से तो नहीं गिरा ना, आसमान में से है ना. उसको हम लोगों ने बनाया. कैसे बनाया. How we synthesize that one based on our knowledge of chemistry, based upon the knowledge of nucleophilicity, based upon the knowledge of electrophilicity. Everything matters. Whatever we have learned, the chemistry matters while synthesizing, while designing the drug. So here in PC1 syllabus है आप लोगों के पास अभी फिलहाल. You are having that syllabus. I think in your syllabus you are having synthesis of drug molecule, different drug molecule. Theoretical aspect of recrystallization is there, and recrystallization of two compound is there. Theoretical aspect OC3 में हुआ था ना, है ना. Theoretical aspect there we have learned, no? Hello. OC3 में देखा था ना हम लोगों ने theoretical aspect of recrystallization. हाँ. Hello. Yes, ma'am. हाँ. There we have learned, but here we have to learn how to synthesize the drug. ठीक है. Suppose for example synthesis by utilizing different kind of named reaction. Named reaction जैसे हम लोगों ने OC2 में named reaction पढ़े थे. Rearrangement reaction we have studied, condensation reaction we have studied, acetylation reaction we have studied, and we have studied what kind of reaction it is. Oxidation reaction, reduction reaction. Then all these reaction we have studied. Now what we are doing in this semester, we are applying those reaction to synthesize the drug molecule. ड्रग मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन अप्लाई करेंगे. सो दोज रिएक्शन, सपोज फॉर एग्जांपल एसिटाइलेशन रिएक्शन है हमारा. ठीक है. विथ एसिटाइलेशन रिएक्शन, ये एसिटाइलेशन रिएक्शन एक रिएक्शन. अनदर वन रिएक्शन इज कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है. कंडेंसेशन रिएक्शन ये एक रिएक्शन है. ठीक है. विथ दिस व्हाट काइंड, this acetylation reaction comes under the synthesis, don't make noise, synthesis of which class of drug it can be utilized as a named reaction. Don't make noise. मेरे पास आ रही है आवाज. कुछ भी करते हैं बच्चे. ठीक है. Acetylation reaction, condensation reaction. Another one, how the reduction can be done. Reduction करने के बाद क्या ड्रग मिलेगा हमको. What kind of oxidation reactions are involved to synthesize the drug molecule. ठीक है. Rearrangement reactions are there. कुछ नहीं करना है, rearrange करना है. ठीक है. So these are almost all the reaction what we are going to apply to synthesize one drug molecule. You know that the compound A plus compound B in presence of some kind of catalyst
वी आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्ट डी। दोनों के बीच में ये जो हो रहा है दैट ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म, ठीक है। एंड यू नो द व्हाट इज मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे एसिटाइलेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to choose this acetylation reaction to synthesize the drug molecule called acetyl salicylic acid, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। हमको इसको बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज करना है बिकॉज विथ एसिटाइलेशन वी आर गोइंग टू गेट द एसिटाइल ग्रुप ऑन द एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे में हम लोगों ने लिया है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। वी हैव टेकन सैलिसिलिक एसिड ये तो हो गई ओ सी ओ एच एंड ये हो गया अपना ओ एच, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड एंड वी नो द क्वालिटेटिव एनालिसिस हमने सैलिसिलिक एसिड का किया है, ठीक है। वी हैव डन द qualitative analysis of salicylic acid and we have done how the salicylic acid can synthesize, purification of salicylic acid also we have done, recrystallization of salicylic acid also done. So this is act as a starting material to react with acetic anhydride. Acetic anhydride is one kind of molecule, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। नाउ एसिटाइलेशन अगर रिएक्शन होता है तो इसको बोलते हैं एसिटाइलेटिंग एजेंट, ठीक है। एसिटिक अनहाइड्राइड इज वन काइंड ऑफ एसिटाइलेटिंग एजेंट। तो ये दोनों को मिलाने के बाद हमको इसको हटा के अपना क्या आएगा, ये एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। so here the acetyl group will get added। तो ये COH है, ठीक है। ये है, ये अपना है ये OH, या तो यहाँ पे अब मैं दोनों पॉसिबिलिटीज बताती हूँ आपको। ये O है, H को हटा के एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ पे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। H को हटा के ये O आया, ये O आया, CH3। नाउ इट विल बिकम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब ये काइंड ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड सिंथेसाइज हो गई। अब रिमूव क्या होगा, हो जाएगा एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा। CH3 C double bond O and this one is OH. It will get eliminated. Now the process of you don't give concentration over here. First of all understand the basic need why we are। so हम लोगों ने पढ़ा उसी में प्रीक्रिस्टलाइजेशन, हम लोगों ने पढ़ा नेम्ड रिएक्शन, वी हैव स्टडीड कंडेंसेशन रे, उसके लिए बहुत मेहनत की हमने, ठीक है। OC3 में लुढ़क के गिर के पढ़ के कैसे भी करके पास हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने बोला कि इट्स वेरी हार्ड सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी टफ सब्जेक्ट, it we required time to study the subject and how to understand all those difficulty we have faced to get out from OC1 OC3, ठीक है। OC1 OC2 and OC3, but that knowledge will help you here to synthesize the drug molecule। एसिटाइलेशन रिएक्शन अप्लाई करेंगे हम लोग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को बनाने के लिए, ठीक है। कंडेंसेशन हम लोग अप्लाई करेंगे सम अदर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेंगे। रिडक्शन रिएक्शन वी आर गोइंग टू अप्लाई to reduce the existing double bond which were present in the molecule। ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है उसको रीअरेंज करेंगे। सो इन दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू लर्न how all these kind of reaction will takes place and how the existing molecule can be reduced, how the modification is done by utilizing this kind of reaction। तो ये हो गया आपका वन पार्ट। but here what we are discussing the DST monograph। apart from this is जो हम लोग ये रेगुलर जब बचपन से लेके जो भी केमिस्ट्री जनरेट हो गई तब से लेके अब तक जो कर रहे हैं, these are all the reactions, but some or other way we are in contact with the carcinogenic agent। carcinogenic agent like we are using HNO3, ठीक है। we are using somewhere we are using HNO3, so this is carcinogenic, it is strongest acid। the fumes come out from this HNO3s are very much toxic to the human body fumes। that's why we are going to keep this HNO3 in fume hood chamber, ठीक है। then coming to the point, another one point, that is H2SO4 sulfuric acid। अब now we are taking sulfuric acid is the strongest acid। when we open the bottle of sulfuric acid you see that the fumes will come out, the sulfate fumes will come out, those are also very toxic to human body। then bromine is there, Br2, okay। bromine is there, brown color, that is packed in amber colored ampoules। so what we will do, we will break that ampoule, we will take
the amount of bromine, and we are going to concentrate that bromine in acetic acid. When we are concentrating bromine in acetic acid, what will happen? It will get diluted. That diluted part we are going to use for bromination purpose. डायरेक्ट ब्रोमीन नहीं लेंगे ब्रोमिनेशन करने के लिए. अगर हमको एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल के अंदर ब्रोमीन चाहिए, वी कांट डू. यू हैव सीन द ब्रोमिनेशन रिएक्शन, हम लोगों ने OC3 में पढ़ा था. ब्रोमिनेशन हेलोजनेशन रिएक्शन के अंदर ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू डू ऑन विच मॉलिक्यूल? 5 membered, 6 membered, 7 membered, 8 membered एंड बाईसाइक्लिक सिस्टम, हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, ऑल दो सिस्टम. ठीक है, वहाँ पे हम लोग ब्रोमिनेशन, ये नेम्ड रिएक्शन तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग. सो देर व्हाई वी आर removing, why we are utilizing this? We required bromine to get the bromine kind of product, बट ब्रोमीन इज कार्सिनोजेनिक. ठीक है, ब्रोमीन को लेना ही है, ब्रोमीन जो है वो कार्सिनोजेनिक है. सो इट इज कार्सिनोजेनिक इसीलिए क्योंकि अगर ये फ्यूम्स कंटिन्यूसली, इफ एनी ह्यूमन बीइंग इज इन कांटेक्ट विद द ब्रोमीन फ्यूम, व्हाट ही विल डू? ही विल गेट skin cancer, he will get lung cancer, all those things will happen if the toxicity of bromine will take place. To avoid this one, the DST had made certain protocol. So the DST means Director of Science and Technology. Science and Technology made certain rules. These rules are comes under green chemistry. Okay? Green chemistry, what we are doing here, we are avoiding the use of almost all kind of these carcinogenic reagents. Carcinogenic reagent को हटा के हम लोग क्या करेंगे? Green acceptable reagent. Instead of using for protonation, instead of using hydrochloric acid, what we are doing? We are using zinc plus plus ion to get protonate the reaction condition. ठीक है, अब मुझे एसिटाइलेशन रिएक्शन नहीं करना है. एसिटिक अनहाइड्राइड इज वेरी मच कार्सिनोजेनिक सॉल्वेंट, ये बहुत कार्सिनोजेनिक है, इसको निकालना है मुझे, ये नहीं यूज़ करना है. बट आई रिक्वायर्ड दिस मॉलिक्यूल. एसिटाइलेशन के अंदर एसिटाइल ग्रुप चाहिए ही चाहिए टू सिंथेसाइज द सैलिसिलिक एसिड. तो मुझे चाहिए तो मुझे ये मॉलिक्यूल चाहिए. मॉलिक्यूल की ही बात है, इसीलिए एसिटिक अनहाइड्राइड ले रहे हैं ना. वी रिक्वायर दिस मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई वी आर यूटिलाइजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड. वन the acetic acid group will get eliminated. Acetic acid is not that much carcinogenic compared to the acetic anhydride. But we require this thing. What we will do? We'll use both together, this one as well as this one. What it will do? It will protonate to the acetic acid, glycyl acetic acid. When it will get protonated, the proton will get eliminated and make a bond with this. H2O will get eliminated and ये क्या हो जाएगा? OH निकल के ये मॉलिक्यूल इधर अटैच हो जाएगा, OH निकल जाएगा. दिस वन विद द जिंक हाइड्रोक्साइड बन के ये निकल जाएगा. अभी ये जो पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल से कंबाइन होके हमको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो हमको एसिटिक अनहाइड्रेट डालने के बाद मिलता है. वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट व्हाट वी आर गेटिंग बाय यूटिलाइजिंग द एसिटिक अनहाइड्रेट. सिमिलर थिंग वी आर गेटिंग. That's why here in this semester we are applying these named reaction to get synthesize that product. वो प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए हम लोग ये सारे नेम्ड रिएक्शन अप्लाई करने हैं. ठीक है, ये सारे नेम. To understand this named reaction, to understand the concept of this green chemistry, the green chemistry made 12 rules. जो rules है वो follow करना है. Means how much amount of catalyst we have to add, what kind of reagent we are going to use, and what is the effect of those reagent on environment, and why what kind of reagent can be replaced with the green reagent. For bromination, what kind of catalyst we have to do to get the bromine on existing molecule. For acetylation, what we have to do. So all those rules will comes under the rules of green chemistry. तो ये आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट के हिसाब से करना है PC1 में. Here what you have to write in your journal. जर्नल में क्या करना है आपको? ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या आएगा? वो नहीं आएगा मॉलिकुलर वेट, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री का नॉट लाइक दैट. सो दिस मच यू हैव डन इन योर OC1 एंड OC2. वहाँ पे खत्म हो गया वो बात. यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन टू द ग्रीन केमिस्ट्री. ऑलमोस्ट ऑल द रूल यू हैव टू स्टडी हियर. ये होने के बाद व्हाट इज योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? आफ्टर दिस योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज
समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. अगर डाउट रहा तो मुझे इंटरप्ट करो, एनी टाइम यू कैन इंटरप्ट मी, ठीक है? ठीक है। Okay, ma'am. अब हम लोग वो करेंगे, वो रूल्स अप्लाई करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री के। यहाँ पे कौन क्या करने के लिए, ये इसको अप्रोच करने के लिए, ये रिएक्शन को अप्रोच करने के लिए, एसिटाइलेशन, कंडेंसेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सो ये सब अप्रोच करने के लिए हम लोग कन्वेंशनल मेथड भी करेंगे। Conventional method means those methodology which are already available. Then we'll do the synthesis by using acetylation with conventional method, and we are going to do the reaction, same reaction, acetylation, with green chemistry method. The green chemistry method is nothing but the DST method, the DST methodology. DST मेथड यूज करके कन्वेंशनल रिएक्शन भी करेंगे, DST मेथड यूज करके ग्रीन केमिस्ट्री रिएक्शन, सेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ही बनाएंगे, अल्फा नेफ्थॉल बनाएंगे, बीटा नेफ्थॉल बनाएंगे। सेम थिंग वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज बाय यूजिंग कन्वेंशनल मेथड as well as by using conventional method as well as by using acetylation method. Both methodology we are going to apply while synthesizing the drug molecule. दोनों मेथड देखेंगे हम लोग, ठीक है? दोनों मेथड इसलिए देखेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर द कन्वेंशनल मेथड विद द ग्रीन मेथड। कन्वेंशनल मेथड में जो हम लोग रिएजेंट और कैटलिस्ट ले रहे हैं, विद दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ यील्ड ऑफ कंपाउंड वी आर गेटिंग, ठीक है? यील्ड कितनी आ रही है, ग्रीन केमिस्ट्री यील्ड ज़्यादा आएगी compared to conventional method. The green yield of the product is higher than compared to conventional method. The क्यों ज़्यादा आई, what kind of catalyst we have replaced with this one, that we are going to learn in this semester. तो हम लोग, इसका मतलब ये है, आपके प्रोटोकॉल में जो दिया है, प्रोटोकॉल ऑफ रिएक्शन व्हाट इज यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड टू यू पीपल, वी आर कंपेयरिंग बोथ द रिएक्शन कंडीशन एंड वी आर राइटिंग आवर कंक्लूजन, ठीक है? एट द एंड वी आर राइटिंग कंक्लूजन विद दिस मेथड। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ, so sorry. So this thing we are going to do, and these are the experiments what we are going to perform in this semester, ठीक है? एसिटाइलेशन हम लोग DST मेथडोलॉजी यूज करके करेंगे, DST भी करेंगे, कन्वेंशनल करेंगे, बोथ करेंगे, ठीक है? So like that, total 8 experiments are there. 8 experiments are there mean we are going to apply 8 reaction condition, ठीक है? जैसे एसिटाइलेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है, वो सारे के सारे 8 रिएक्शन कंडीशन वी आर गोइंग टू अप्लाई. Somewhere we are going to synthesize the product by conventional method only, somewhere we are going to synthesize by utilizing the DST method, ठीक है? और somewhere we are applying both the methodology and comparing the yield of the compound. ऐसे करेंगे हम लोग, थोड़ी जगह वो, थोड़ी जगह, it is there in your syllabus like that only, according to your, we are going to follow your university protocol, ठीक है? जो यहाँ तो यूनिवर्सिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से थोड़ी जगह ऐसा है, थोड़ी जगह, ठीक है? अभी ये खत्म हो गया, ये एक पार्ट हो गया जो हम लोग करेंगे ये सेमेस्टर में. Another one thing what you have to remember, very important thing here, after synthesis, पूरा synthesis किया भाई आपने, ठीक है? You have done the synthesis. After synthesis the main important part is calculation. कैलकुलेशन, जो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन सीखोगे, ऑल द कैलकुलेशन पार्ट इज एप्लीकेबल अप टू कंप्लीशन ऑफ योर फाइनल ईयर बी फॉर्म. यहाँ पे PC1, PC2, PC1 में जो कैलकुलेशन करेंगे वो PC2 में एप्लीकेबल होंगे, PC2 में जो सीखेंगे वो PC3 में एप्लीकेबल होंगे, ठीक है? सो
So what you are learning that calculation part applicable in almost all the semester, ठीक है, PC1 में, PC2 में और PC3 में, हर जगह तीनों सेमिस्टर में ये एक ही कैलकुलेशन चलेगा. सपोज फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कैलकुलेशन पार्ट में बताती हूँ आपको. सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या सिंथेसाइज व्हाट वी आर सिंथेसाइजिंग. Excuse me, I'm going to tell you one example. I'm going to give you how the calculation can be done. So what I'm doing, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं देती हूँ तुमको. So these are the things what we are going to do. Important मैंने क्या बोला था, calculation. I'm going to give you one calculation part. Suppose for example I am having this structure. Okay. So we have to synthesize the para-amino benzoic acid. ठीक है, para-amino benzoic acid बनाना है हमको. ठीक है, ये तो हो गया अपना, और ये हो गया para-nitrobenzoic acid. Okay. This one here, what I am using tin hydrochloride. ठीक है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड बनाना है मुझे. आफ्टर एडिंग दिस थिंग व्हाट आई एम गेटिंग दिस प्रोडक्ट पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. ठीक है, नाइट्रोल विल कन्वर्टेड इनटू अमाइनो NH2. अभी मेरा बन गया पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. ठीक है, ये बन गया मेरा बेंजोइक एसिड बन गया. ब्यूटेनोइक एसिड इज डिफरेंट, बेंजोइक एसिड इज डिफरेंट. ठीक है, अब ये मेरा प्रोडक्ट है सिंथेसिस. कैलकुलेशन का काम क्या है हियर, हाउ वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन. हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस वन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड. इसका मॉलिक्यूलर वेट लेना है. देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सिंथेसाइज प्रोडक्ट पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करना है, यू कैन आस्क टू. तो कैलकुलेशन पार्ट में हमको क्या करना है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लेना है. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड. ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल 125 है. मैं पूरा एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं बोल रही हूँ ऐसे. ठीक है, पैरा अमाइनो बेंजोइक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रो, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग हियर. ओके सॉरी, molecular weight of para-nitrobenzoic acid. Then molecular weight of para-amino benzoic acid. ठीक है, ये अब मेरा मॉलिक्यूलर वेट है अराउंड 125. मैं ऐसे लिखती हूँ 126 सपोज. ठीक है, quantity of this para-nitrobenzoic acid what I am taking to synthesize the para-amino benzoic acid is 8 gram. क्वांटिटी टेकन पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड बनाने के लिए मैंने कितना पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड यूज़ किया है सिंथेसिस में, 8 ग्राम मैंने यूज़ किया. ठीक है, सिंथेसिस 8 ग्राम है, तो बेंजोइक एसिड कितना सिंथेसाइज होगा मेरे पास. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी 125 ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 126, कितना मेरा सिंथेसाइज होगा. ठीक है, कितना सिंथेसाइज होगा. अब ये जो आएगा वो थियोरेटिकल यील्ड होगी मेरी. थियोरेटिकली दिस मच अमाउंट ऑफ कंपाउंड आई हैव टू गेट. ठीक है, दिस मच अमाउंट ऑफ कंपाउंड, ये मैं जनरली बता रही हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी में नहीं जा रही. आई एम एक्सप्लेनिंग जनरल प्रोटोकॉल, जनरल प्रोसीजर हाउ टू
कैलकुलेशन सिंथेसिस का अकॉर्डिंगली हाउ वी आर स्टार्टिंग सिंथेसिस, हाउ वी विल गेट एंड अप विद द सिंथेसिस, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन. But here what we are doing, that I am explaining everything, introductory part of your PC1 practicals. ठीक है, theoretical yield हो गई. अभी आपको कैलकुलेट करना है प्रैक्टिकल yield. प्रैक्टिकल, ये तो थियरी हो गई, molecular weight of this, molecular weight of this, and how much amount we are adding, that multiplied and divided by molecular weight of para-amino. ये हो गया. अब यील्ड कितनी आई भाई, सपोज फॉर एग्जांपल आई गॉट 8 ग्राम, आई गॉट 2.5 ग्राम. ठीक है, मैंने सिंथेसाइज किया अराउंड. ठीक है, जस्ट जनरली मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, जनरली आई एम राइटिंग द डिजिट्स. ठीक है, अब थियोरेटिकल यील्ड आई 2.5 ग्राम एंड सिंथेसाइज करने के बाद मिला मुझे 1.5 ग्राम. आई हैव सिंथेसाइज मल्टीप्लाइड बाय 100, जो ये आएगी प्रैक्टिकल यील्ड, दैट इज योर परसेंटेज यील्ड. प्रैक्टिकल यील्ड जो भी आएगी आपकी मल्टीप्लाइड बाय 100 करने के बाद, दैट इज योर प्रैक्टिकल. क्यों नहीं काम कर रहा है, बीच बीच में आते हैं तो बच्चे. So this is nothing what you are. ठीक है, सो दिस इज योर कैलकुलेशन. यहाँ पे आपकी आएगी, उसको हम लिखेंगे प्रैक्टिकल यील्ड, दैट इज परसेंटेज. ठीक है, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय प्रैक्टिकल यील्ड, दैट इज परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज यील्ड बोलते हैं इसको, प्रैक्टिकल यील्ड. प्रैक्टिकली आपको कितने सिंथेसाइज, आपने ये थियरी हो गई. प्रैक्टिकल आप सिंथेसिस करने के बाद जो क्वांटिटी निकाल रहे हो, दैट इज इन 1.5 ग्राम. ठीक है, प्रैक्टिकल यील्ड आपकी 1.5 ग्राम है. अब प्रैक्टिकल यील्ड 1.5 ग्राम है तो परसेंटेज, सॉरी दिस वन इज परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज यील्ड कितनी आई, तो प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, जो आएगी वो परसेंटेज यील्ड रहेगी आपकी. सो दिस इज द कैलकुलेशन व्हाट वी आर गोइंग टू कैरी आउट टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वी हैव सिंथेसाइज. तो इसका प्रोडक्ट कितना आया, कन्वेंशनल मेथड का कितना आया, दैट कंक्लूजन वी आर राइटिंग एट द एंड ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो ये एक काम है जो आपको रेगुलरली करना है, ऑलमोस्ट ऑल 8 एक्सपेरिमेंट इन योर एंटायर सेमेस्टर, इन दिस एंटायर सेमेस्टर, नॉट इन ऑलमोस्ट ऑल द सेमेस्टर. ये करना है आपको. और एक काम क्या करना है, व्हेन यू आर सिंथेसाइजिंग द प्रोडक्ट, जब आप सिंथेसाइज ही कर रहे हो, when you are synthesizing, then what you have to do, synthesis जब कर रहे हो, synthesis के साथ में you have to do the purification. So purification, how to carry out the purification, you have learned in your OC3. प्यूरिफिकेशन कैसे करना है बताइए, आपको OC3 में आपने सीखा है. हाउ यू आर डूइंग द प्यूरिफिकेशन, बाय रिक्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, और क्या रहेगा, मतलब after synthesis you have to purify the product. After purification you have to calculate the yield of that compound and you have to take the melting point. The melting point will help you to tally with the literature what you have synthesized, that compound is in a exact form or not. Agar melting point is tallying with the literature, it means that what you have synthesized, that compound is correct. ठीक है, सो ये काम आपको करना है. क्या करना है, आपको पूरे रिएक्शंस जो भी आपने सीखे थे इन योर एंटायर सेमेस्टर, व्हाट इज योर इंट्रोडक्टरी पार्ट, पॉइंट 1 व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू ऑन योर बेसिक नॉलेज यू हैव टू अप्लाई ऑलमोस्ट ऑल नेम्ड रिएक्शन. ठीक है, नेम्ड रिएक्शन अप्लाई करना है आपको टू सिंथेसाइज द, नेम्ड रिएक्शन अप्लाई करना है. क्यों नेम्ड रिएक्शन अप्लाई करना है, टू synthesize the drug molecule और intermediate product. ठीक है, आपको सिंथेसाइज करना है, नेम्ड रिएक्शन अप्लाई करके सिंथेसिस करना है. सिंथेसिस करने के बाद थर्ड पॉइंट क्या याद रखनी है यहाँ पे, ये सेमेस्टर में क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है. प्यूरिफिकेशन, व्हाट यू हैव टू डू हियर, प्यूरिफाई करना है प्रोडक्ट. प्यूरिफाई करने के बाद क्या करना है, द लास्ट पॉइंट ऑफ आफ्टर प्यूरिफिकेशन इज मेल्टिंग पॉइंट लेना है कंपाउंड का. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लेके दैट मेल्टिंग पॉइंट यू हैव टू टैली विद द लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, लिटरेचर से कंपेयर करना है, अगर सही है तो व्हाट यू हैव सिंथेसाइज योर प्रोडक्ट इज करेक्ट. मेल्टिंग पॉइंट करना है.
ठीक है, प्यूरिफिकेशन करना है, मेल्टिंग पॉइंट लेना है, इतना काम आपको ये सेमेस्टर में करना है। ओके, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यू हैव जनरेटेड, दैट यू हैव टू डू बाय कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज द मेन पार्ट। सपोज अब कैलकुलेशन कैसे करना है, मॉलिकुलर वेट आपको ब्राउज नहीं करना है गूगल में जाके, ठीक है, वो सैलिसिलिक एसिड ले रहे हैं गूगल में तो डायरेक्टली दे देगा मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट करने के लिए अभी सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास है बेंजीन, ठीक है, आपका ये स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन है, आपको बनाना है अल्कोहल, ठीक है, बेंजीन है आपके पास, ब्रोमोबेंजीन बनाना है आपको। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो मैं क्या करूँगी, HBr डालूंगी, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हियर आई एम गेटिंग द ब्रोमोबेंजीन, एक Br आ जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। टू डिजॉल्व दिस वन और क्या डालूंगी मैं, CH3COH, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करना है, दैट वो तो पूरा द ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिंथेटिक एक्सपेरिमेंट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सही है सब सही है, कैलकुलेशन गलत है सब कुछ गलत है, ठीक है। मॉलिकुलर वेट इसका भी लेना है क्योंकि आपने इसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लिया है इसको सिंथेसाइज करने के। मॉलिकुलर वेट ब्रोमोबेंजीन का भी लेना है, ठीक है। अब मॉलिकुलर वेट इसका लेना है तो तुमको इसको कैलकुलेट करने के, इसके मॉलिक्यूल C6 कार्बन एटम कितने हैं, 6, C6H कितने हैं इसके पास, काउंट करके बोलो मुझे, कितने हाइड्रोजन एटम है, कम ऑन, उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा क्या, सुन रहे हो मेरी बात सब लोग। H6 है, ठीक है, C6 H6 है, 12 है ना। 6 कैसे रहते हैं, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहता है क्या बेटा, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। देन कार्बन एटम का वेट क्या है, एक कार्बन एटम का, कम ऑन, यही करना है आपको, यही निकालना है, यही इंपॉर्टेंट है आपके पास अब। 6 और 12, 6 है या 12, कार्बन का, कम ऑन, अभी लैब में रहते तो यही करते हम लोग, इसका उसका मॉलिकुलर वेट निकालते। 6 है मैम। 6 है ना, तो ऐसे बोलो ना बेटा, वही तो मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है। इसका 6, हाइड्रोजन का 1 है ना, 1 है ना, यस मैम, हाँ तो हाँ टोटल, 1। हाँ मैम। हाँ तो अब क्या करेंगे हम लोग, कितने कार्बन एटम है अपने पास, 6 इंटू 6 है ना, 6 इंटू कितने हैं अपने पास, 6 इंटू 6 कितना हुआ, बोलो जल्दी, 36। 36, ठीक है। हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 12, 1 मतलब 12, 36 प्लस 12, 6 7 8 4। अब मॉलिकुलर वेट क्या हुआ बेंजीन का, 48, ऐसे कैलकुलेट करना है मॉलिकुलर वेट, ठीक है। मॉलिकुलर वेट ऑफ ब्रोमीन कितना है, ब्रोमीन का मॉलिकुलर वेट, वन फास्ट, ओ ये क्या कर रहे हो, 48, ये हो गया बेंजीन का, ये मैं यहाँ पे लिखूंगी 48, बेंजीन का तो 48 ही रहेगा, और प्लस एडिशन, ये तो कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन एटम को ब्रोमीन कनेक्टेड है, कितने हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो गए यहाँ से,
अरे बोलो क्या कर रहे हो सब लोग? 48 प्लस 79, मैं ही बोल रही हूँ, मुझे ही बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं ही पढ़ा रही हूँ ना, तुम लोग देख सुन भी नहीं रहे मेरी बात। है ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन 79 है ना? यस मैम, हाँ 79। 79 है ना? क्या कर रहे हो बेटा तुम लोग? यही काम करना है आपको लैब में, ये इम्पोर्टेंट है, पूरा फाइनल ईयर तक चलेगा आपको। चलो बोलो ब्रोमोबेंजीन का क्या हुआ? काउंट करके बोलो मुझे। मैम 127। 127, ठीक है, ये हो गया 127। अभी 127 सही है नहीं है बाद में देखते हैं। तो ये अपना मॉलिक्यूलर वेट हो गया बेंजोइक एसिड का, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया बेंजीन का, ठीक है। अब क्या करना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ बेंजीन आई हैव टेकन टू सिंथेसाइज द ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन को सिंथेसाइज करने के लिए मैंने कितना अमाउंट ऑफ बेंजीन लिया है भाई, ठीक है। अब अच्छे से देखते हैं कैलकुलेशन कैसे लिया है। 1 मोल, एक मोल का 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, एक मोल बेंजोइक एसिड का, बेंजीन का सॉरी, एक मोल बेंजीन का, बेंजीन, ठीक है, हमने बेंजीन लिया है ना, बेंजीन लिया है ना, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन लिया है हमने, और टेकन बेंजीन टू सिंथेसाइज ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन सिंथेसाइज करने के लिए ऑफकोर्स हम लोगों ने ब्रोमीन डाला है, ठीक है। मॉलिकुलर वेट का वेट हो गया इसका, कितना हुआ इसका मॉलिकुलर, सपोज 48 हुआ ना, इसका 48, इसका 1, सही बोला गलत बोला पता नहीं मुझे, मतलब 127 बोला था ना, तो इसका मॉलिकुलर वेट इतना है सपोज। अभी मैंने इसको सिंथेसाइज करने के लिए आई हैव टेकन 3 ग्राम ऑफ बेंजीन आई हैव टेकन टू सिंथेसाइज द सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ ब्रोमीन है और एसिटिक एसिड, इसका मॉलिकुलर वेट नहीं लेना है, मॉलिकुलर वेट एंड प्रोडक्ट का लेना है, मॉलिकुलर वेट स्टार्टिंग मटेरियल लेना है। 1 मोल ऑफ बेंजीन, 1 मोल ऑफ, 1 मोल बेंजीन का 1 मोल ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन 1 मोल ऑफ बेंजीन से 1 मोल ऑफ ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन, मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन, मॉलिकुलर वेट ऑफ ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन लेना है। अब मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन हमने कैलकुलेट किया था अराउंड 48, सही नहीं है पर फिर भी मैं बोल रही हूँ अराउंड 48, एंड वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन एज 127, ठीक है, बता रही हूँ मैं। देन अमाउंट ऑफ, ये दोनों इतने लिए हमने, देन ये है, ये बनाया। अब मैंने क्या लिया, कितना लिया, यहाँ पे मैंने लिखा 3 ग्राम, 3 ग्राम ऑफ बेंजीन आई हैव टेकन टू सिंथेसाइज सैलिसिलिक एसिड इन 48 ग्राम में 127 बनेगा, मॉलिकुलर वेट है। जब मैं 3 ग्राम लूँ, 1 मोल ऑफ बेंजीन इक्वल टू 1 मोल ऑफ ब्रोमोबेंजीन बोल रहे हैं यहाँ ऊपर, मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन इतना है, मॉलिकुलर वेट ऑफ ब्रोमोबेंजीन इतना है, ठीक है। देन मॉलिकुलर वेट हमने यहाँ पे सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, मैंने अभी जैसे बताया कि कार्बन को अलग करना है उसका मॉलिकुलर वेट लेना है, हाइड्रोजन को अलग करना है उसका मॉलिकुलर वेट लेना है, दोनों का सम निकाल के एक मॉलिकुलर वेट बनेगा, ठीक है। तो 3 ग्राम मैंने लिया है, क्वांटिटी 3 ग्राम आई हैव टेकन, देन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ब्रोमोबेंजीन आई एम गोइंग टू सिंथेसाइज इन 3 ग्राम ऑफ बेंजीन, कितना मुझे करना है। सो दिस इज कॉल्ड एक्स, कुछ नहीं है मतलब एक्स, दैट एक्स इज इक्वल टू दैट एक्स जो मैंने बनाया। अब मेरे पास क्या है 127 है, मैंने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, 127 मैंने प्रोडक्ट लिया है ना, मॉलिकुलर वेट ऑफ ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो इतना मुझे मॉलिकुलर वेट ऑफ ब्रोमोबेंजीन मुझे बनाना है, और मैंने लिया है 3 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, बट है कितना बेंजीन 48, ठीक है। हाँ चलो अब फटाफट कैलकुलेट करके बोलो कितना आया एक्स, कैलकुलेट करो फटाफट, मैं टाइम लेती हूँ थोड़ा टाइम प्लीज, चलो कैलकुलेट करके बोलो मुझे।
Calculate it fast. Do the calculation. Around 7.9. 7.93. So how much you have synthesized? 7.93. From 3 gram you have synthesized 7.93. You have synthesized this much of bromobenzene from 3 gram of benzene. 3 gram benzene से आपने 7 gram bromobenzene बना लिया. So this is your theoretical calculation. This is your theoretical yield. आपने अभी प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म किया, आपको मिला ये थियोरी. ठीक है. अब आपने सिंथेसिस किया ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन के हिसाब से. जब आपने सिंथेसिस किया ब्रोमोबेंजीन, दैट इज योर प्रैक्टिकल यील्ड. ठीक है. थियोरेटिकल यील्ड तो 7.93 ग्राम है. ठीक है. बट प्रैक्टिकली आपको इतना नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है 5.6 ग्राम. आपने इतना बनाया, इतना है. थियोरी तो आपकी ये थी, आपको इतना बनाना था, लेकिन जब बना रहे थे आप इतना बना आपका. When you are synthesizing, you got this much. Your aim is you are getting around 7 gram, because theoretically you have to get 7 gram, not more than 7 gram. अगर more than 7 gram ज़्यादा है तो आपने starting material ही ज़्यादा लिया. You have not calculated the weight. ठीक है. It means that you have not done proper calculation. You have not done proper weighing of the chemical. Error in the weight and measurement. If error in the weight and measurement, the variation of practical yield will be takes place. If the variation of practical, if it is more than 7 gram, खुश होने की जरूरत नहीं है. मैंने इतना सारा बनाया मैडम, मैं बहुत सारा बनाया. इट्स नॉट लाइक दैट. वहाँ पे मैडम को पता चल जाएगा कि आपने instead of 3 gram, as usual, casually you have taken the weight of that starting material. ठीक है. So that is one kind of error what student will do always, but you are very good student, you can do the proper measurement, that I know. तो ये अपना practical yield कम आ रहा है तो ठीक है. ठीक है. Because of environmental condition, because of the impurity of the catalyst, we are going to get the less amount of the compound. That is good. ठीक है. 5.6 ग्राम अब मैंने बना लिया. अब मुझे क्या करना है, परसेंटेज यील्ड निकालनी है. परसेंटेज यील्ड कैसे निकालनी है? परसेंटेज यील्ड इक्वल टू practical yield divided by theoretical yield multiplied by 100. ठीक है. प्रैक्टिकली आपको मिली परसेंटेज यील्ड कैलकुलेशन करें, प्रैक्टिकली आपको मिली 5.6 ग्राम. ठीक है. थियोरेटिकली आपने कैलकुलेट किया था 7.93 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100. चलो कैलकुलेट करो इसको, बोलो मुझे क्या आया. कम ऑन फास्ट. परसेंटेज यील्ड क्या आई? 70.8 मैम. हाँ, 70.8% ऑफ कंपाउंड यू हैव सिंथेसाइज. ठीक है. इतना आपने बनाया आपका कंपाउंड. एक्सेलेंट, वेरी गुड. सो दिस इज योर कैलकुलेशन. अब ये कैलकुलेशन एंटायर सेमिस्टर यू आर गोइंग टू डू द सेम कैलकुलेशन व्हेन यू आर सिंथेसाइजिंग योर प्रोडक्ट. जब भी सिंथेसाइज कर रहे हैं, रिएक्शन डाल रहे हैं, उसके बाद आपको थियोरेटिकल यील्ड निकालनी है, देन प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल यील्ड लेनी है. वॉट एवर इट मे बी द मेथडोलॉजी, कन्वेंशनल मेथडोलॉजी और डीएसटी मेथडोलॉजी. कन्वेंशनल क्लासिकल मेथड पे हम लोग वो रेगुलर मेथडोलॉजी कार्सिनोजेनिक रिएजेंट यूज कर रहे हैं. DST method, green method, we same reaction, but we are replacing the carcinogenic reagent which were present in the classical method. तो यही डिफरेंस है दोनों मेथडोलॉजी में. यही एक्सपेरिमेंट एंटायर सेमेस्टर में करना है हमको मेल्टिंग पॉइंट के साथ में. अंडरस्टूड. प्यूरिफिकेशन करने के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करना है व्हेन वी आर कंप्लीटिंग विथ आवर सिंथेटिक मेथडोलॉजी. ठीक है. अंडरस्टूड. सो यही करना है आपको आपके एक्सपेरिमेंट में. तो नेक्स्ट हम लोग ये सेम थिंग डिस्कस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द प्यूरिफिकेशन. हाउ द प्यूरिफिकेशन कैन बी डन, दैट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड. Then after that what we will do, we'll start our synthesis, DST as well as conventional method, acetylation reaction. और लैब के प्रोसीजर आपको सारे पता है, आपने सेम 1 में पढ़ा है, सेम 2 में पढ़ा है. सेफ्टी मेजर सब पता है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत है बोलने की? Should I dictate the safety measures? Not required, no?
इज इट रिक्वायर्ड? अरे बच्चों सुन रहे हो मेरी बात? नो। नो, ठीक है, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या करने वाले हैं हम लोग ये सेमेस्टर में? बराबर। बराबर है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी द क्रेडिट, थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है, शैल आई क्लोज माय रूम? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. कौन है ये इतना सो रहा है? खाया Yes, ma'am. लगता है कि ज्यादा खाया है इसने खाना आज दोपहर में, है ना? कौन है बेटा इतना बेफिक्र है? अनस ना? अनस ही हो सकता है ना? सही है ना अनस? नहीं मैम। अनस है ना? ये ऐसे क्या बोल रहे हो? नहीं, हाँ ठीक है, व्हाट इज दिस ना? इज इट द वे ऑफ टॉकिंग विद टीचर? मैम वैसी आवाज आ रही है, क्या करेंगे? इसका मतलब खाए हो ज्यादा, अच्छा पेट भर के खाए हो तुम खाना, चिकन नहीं मैम, खाना ही नहीं हुआ अभी। बिरयानी वगैरह खाए होगे, इसीलिए ऐसी आवाज आ रही है तुम्हारी। चलो नहीं, आपने खाया नहीं ना, इसके लिए मैंने भी नहीं खाया मैम। मैं तो रोजा हूँ ना, तुम वैसे तो नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा अपने आप पे जुल्म नहीं ढा सकते, है ना? चलो ठीक है, चलो ऑल ऑफ यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बाय, टेक केयर, Allah Hafiz, ma'am. हाफिज, टेक केयर ऑल ऑफ यू।